प्रणाम सर। पूछ रहा हूँ।
रितिका इसको रीड आउट करो तो। Law of return is divided into two parts. First, the heading is law of variable proportion. Then, law of return is divided into two parts. Short run law of returns, long run law of returns and scaling. Short run law of returns are divided into two parts. Classical law of return, law of variable proportion. Classical law of returns are divided into three parts. Law of increasing returns, law of constant return, law of decreasing or diminishing returns. Now you read out. Law of variable proportion. Laws of return is divided into two types: short run law of returns and long run law of returns to a scale. Short run laws of returns are divided into two parts: classical laws of returns and laws of variable proportions. Classical laws of returns are divided into three parts: law of increasing returns, law of constant returns, and law of decreasing or diminishing returns. Ritika, Yes, sir. my question is that what is our topic of discussion? Law of returns. Where does it stand in the list? Sorry, sir. Where does it stand in the list? In the first page. Sir, didn't understand the question. In the first page, locate law of variable proportion. Variable proportion. Acha. So, law of variable proportion, sir. Second point. So you can say that law of variable proportion is short-run laws of returns, Yes, sir. which is different from the classical laws of returns. Yes, sir. If I would have started laws of variable proportion directly. If it is Okay. explained directly, then you could not have this view. This Yes, is sir. the whole story about the laws of returns. Laws of returns is divided into two types: short-run laws of returns and long-run laws of returns. Laws of return to scale. Returns to scale. In the long run, you can change the plant size. Therefore it is called a scale. In the long run, laws of returns and in the long run, laws of returns to a scale has greater mobility and changes in the industry, in the plant. Many things can be changed. Innovation can be applied. But in the short run, time is very short. So, Yes, sir. So short run, long run, and these are the two period over which economists discuss too much. Classical economists believes in long run. But John Maynard Keynes says that in the long run we will be dead. So we should talk about short run. We should talk about the change, removal of any problem, economic problem in the short run. In the long run, we will be dead. So his theory, which we will read in next classes, he assumes short run time dimension in his theory of employment. People would like to get job short run, not in long run. Because in the long run, he will not be able to get job because of the age bar. So job must be created as soon as possible. There is a limitation of age also in Job creation is important, sir. Yeah. Job creation is important. Job creation important in the long run or short run? In the long run. Long run. So what is the limit of long run?
100 years, 10 years, 20 years. Sir, both the things are important in short run as well as in long run, but it is more important in short run. First, we create the job for the people in short run. So that would require मतलब कांस्टेंट एक तो रिटर्न होना चाहिए ना कि हमको ये लॉन्ग रन तक मेरा ही चलने वाला है. Then a long run, a job is not depending upon long run. Job is there. Employee may work up to 60 years or may die before 60 years. This is one the longevity. That is not in the hand of employers. You might be knowing that the petroleum industry, most of the workers go inside the ocean where there is underground, all these things are done. And the life expectancy is reduced because of several types of diseases. So longevity is another thing. What is the main question? That government should think about employment in the short run. Immediately, you will get job after graduation or intermediate, whatever your last ambition. So if you have to wait 4 years, 5 years, 10 years, and in Bihar 20 years, then what will happen? I taught one student in the last, I think, 25 years back. He was PhD gold medalist, but he could not get job because there was no advertisement of lecturer. And he became teacher, a school teacher. Recently, there is a appointment of a few hundred lecturers in which he is selected. But he has lost his period of 20 years, more than 20 or 30 years. And what will be left out? He might retire after 10 years. I joined as a lecturer by government commission passing through the BPSC. I became lecturer at the age of 21. So I worked 44 years as a lecturer, but with me, some of them could not avail this period. So job opportunity must be availed when you end up your education. MBA, you have did MBA, then what will you do after that? You will join. Most of the engineers, IITian, after passing engineering, they join MBA and then they join any service. So question is, employment should be given in the short run, not in the long run. Because in the long run, we will be dead. And that is the statement of John Maynard Keynes in his general theory of employment, interest, and money. Here, I am not discussing classical laws of returns just now, nor I am discussing long-term laws of returns. All these are separate topics we will discuss in one by one. But I have given this summary to fix in your mind that where laws of variable proportion is established in the rank of short run laws of returns, and it is divided into two parts, classical and laws of variable proportion is modern. This is modern theory of laws of return. And some of them who had contributed to it, they also got Nobel Prize. For example, Stigler. Stigler got Nobel Prize for writing about the laws of returns. Mr. John Robinson has written about it, but she could not get Nobel Prize because she had more writings in favor of communistic economy, or Nobel Prize is given to those who believe in capitalism or democracy. So she was not given. Mr. John Robinson taught Mr. James Keynes. Mr. James Keynes, John Maynard Keynes taught Mr. John Robinson in Cambridge University. And Mr. John Robinson taught Manmohan Singh in Cambridge University, who became Prime Minister of India. So this is the sequence. Harrod
Harrod was also a student of John Maynard Keynes, and Harrod becomes famous Harrod model in growth, Harrod-Domar model in growth. Harrod-Domar model. That Harrod is a student of John Maynard Keynes. This is John Robinson is a student of John Maynard Keynes. You can ask me that how could I know? I was not a student of John Maynard Keynes. When you read the General Theory of Employment Testimony, in its preface, this line is written. So always I read first preface, that what is in it. So in that book, in preface, Keynes has written that Harrod is my student, and I am very much influenced by him, saving and investment theory. So I have taken his diagram in my book. You will surprised to know that in John Maynard Keynes' book, The General Theory of Employment, Trust and Money, there is no diagram. But there is one diagram of saving and investment, and Keynes writes that this is not my diagram. This is diagram of Harrod that I put it here. So sometimes somebody will ask you that how many diagrams are in John Maynard Keynes' book, The General Theory of Employment, Trust and Money. John Maynard Keynes is a father of macroeconomics. Alfred Marshall is father of microeconomics. And Adam Smith is father of economics. So all these three, we should read his book or their book. So today we will discuss each and everything which is in the first page in different classes. But today, my submission to you that law of variable proportion is our topic. This is the introductory page. And now I shift to the topic, law of variable proportion. Law of variable proportion. First stage. Increasing returns. Second stage, diminishing return. Third stage, negative returns. है ना? हाँ सर. और हम लोग का भी स्टेज रहता है ना, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज. यस सर. और फिर आफ्टर मैरिज फिर क्या होता है? नेगेटिव रिटर्न्स. आफ्टर मैरिज डिमिनिशिंग है, उस समय तक इंक्रीजिंग रिटर्न रहता है. उस टाइम के बाद में नेगेटिव रिटर्न्स आता है ना, पहले डिमिनिशिंग होता जाएगा फिर नेगेटिव रिटर्न्स. नेगेटिव कहाँ आएगा? नेगेटिव आएगा जब तुम्हारा पोता पोती बोलेगा तब. नेगेटिव रिटर्न तो बहुत बात. लाइफ टाइम में जो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न हुआ व्हेन यू हैव वन किड और किड्स, 2 किड्स और 1 किड. अब हमारे यहाँ तो वही है. अब उसका ग्रोथ जो होगा वो तुम्हारे साथ चलेगा. तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न और उसका फिर नया स्टेज चलेगा. अब फिर वो सब जब सियाना हो गया तब तुम्हारा आ जाएगा नेगेटिव रिटर्न. ये पूजा पाठ ये वो
अब वो हो जाएगा आप उसके, अब उसका फिक्स है कि एक चीज सर्टेन है, वो है डेथ। कब है वो लोग नहीं जानता, लेकिन एवरेज निकाले हुआ है कि अगर आप यूएस में रहते हैं तो 95 आपका एज है, और वो एज है आपका लॉन्जिविटी का, बराबर हम लोग से आगे रहता है। इंडिया का है 72 ईयर्स लॉन्जिविटी। अब तुम्हारे आसपास बहुत लोग होंगे जो 72 प्लस भी होंगे और बिलो 72 भी होंगे, तो अब वो सब स्टेज उनका है। हम यहाँ ये इसलिए बता रहे हैं कि ये भी शॉर्ट रन का है, लॉज ऑफ रिटर्न्स भी शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में दो आइटम है ना, लॉज ऑफ रिटर्न शॉर्ट रन में है कि नहीं? हाँ है। नंबर 1 पर वही है। हाँ। उसमें देखो उसमें क्या होता है, उसमें होता है फर्स्ट स्टेज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न उसमें भी। अब देखो सेकेंड स्टेज जो आता है, सेकेंड स्टेज में क्या आता है, कुछ गेस? कांस्टेंट। करेक्ट। एकदम आईएएस का तैयारी में लगी हुई हो, एकदम करेक्ट बोली, कांस्टेंट रिटर्न। और थर्ड में क्या आता है? डिमिनिशिंग। तुमसे पहले बोल दी है, क्या बोली हो? डिमिनिशिंग। डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न। हाँ ठीक, इंक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग करते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब तुम इंटरव्यू में अगर आईएएस में गई या तुमसे पूछ दिया कि लॉज ऑफ वैल्यूड प्रोपोर्शन लॉज ऑफ रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी है कि दोनों शॉर्ट रन है। एंड फर्स्ट स्टेज में दोनों का इंक्रीजिंग रिटर्न रहता है। सेकेंड स्टेज में सेकेंड स्टेज से वो लोग ऑपोजिट वे में चले जाते हैं। सेकेंड स्टेज जो है लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन सीधे डिमिनिशिंग आ गया। हाँ उनका राइट। कहना उनका कहना है कि रियलिटी में क्या है, इंक्रीजिंग नहीं तो डिमिनिशिंग। हाँ। क्लासिकल कहता है कि नहीं, कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न जो है रहेगा, कांस्टेंट रिटर्न का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रहेगा, कहीं भी टच कीजिएगा तो 10 है तो 10 ही रहेगा वो। राइट। और क्लासिकल में थर्ड स्टेज हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स, और यहाँ थर्ड स्टेज है लेकिन वो है निगेटिव रिटर्न। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या दोनों में अंतर होता है, लेकिन तो क्लियर नजर आ रहा है कि इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों सेम होगा और डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग दोनों सेम होगा, लेकिन बीच का कांस्टेंट कहाँ गायब हो गया और निगेटिव का मतलब क्या हो गया। अब देखिए एक डायग्राम है जो ऐसे खींचे गए हैं, तो इसको कहा जाएगा एवरेज प्रोडक्टिविटी। और दूसरा खींचेंगे दूसरा खींचेंगे ठीक उसी तरह का, लेकिन उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और एक्स एक्सिस पर इसमें होगा वेरिएबल फैक्टर,
और वाई एक्सिस पर होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या होगा? एक्स एक्सिस पर क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर। और वाई में होगा एपी। एपी का मतलब क्या हो गया? एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्टिविटी। और एमपी का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। अब दोनों डायग्राम को हमको एक पर खींचना है, ये तो अलग अलग है। इधर हो गया वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मतलब समझ लो लेबर, और भी चीज होगा लेकिन लेबर मुख्य है। लेबर लिखेंगे नहीं क्योंकि लेबर देंगे तो एक हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर जो भी होगा उसमें आ जाएगा। सर ये एक्स वाई एक्सिस को टच नहीं करता है क्या? हैं? जो वाई एक्सिस को टच नहीं करता है क्या? क्या बोली? जो कर्व बनाए हैं वो वाई एक्सिस को टच नहीं होगा? वाई एक्सिस को टच और कर्व जो है सो हाँ। टच करोगे तो जीरो हो जाएगा। चाहती हो क्या बिजनेस में नहीं। जीरो हो जाए? नहीं। क्या चाहती हो? मोर देन जीरो की इक्वल टू जीरो? यस यस। है? ग्रेटर देन जीरो मोर देन चाहती जीरो। हो? मोर देन जीरो इसलिए नहीं सटा है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ। बिहार बिहार का फैक्ट्री होगा तो सटेगा ही नहीं बल्कि कटेगा। कटेगा तो नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? लॉस। नीचे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ऊपर क्या रहता है? प्लस। तो मार्जिनल जो है वो नीचे डाउन चला जाएगा फैक्ट्री में। एवरेज जो है डाउन जाएगा, लेकिन जैसे मार्जिनल माइनस हो जाएगा वैसे फैक्ट्री को रोक देगा प्रोडक्शन, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन मार्जिनल क्या होगा? मार्जिनल कर्व जो है माइनस में नजर आता है। अब जैसे देखो एक इसको उदाहरण से हम तुमको बता रहे हैं। ये कर्व लिए, एवरेज प्रोडक्टिविटी, और ये जो दूसरा कर्व लिए टॉप से काटेंगे। कहां से काटेंगे? टॉप से। टॉप से काटेंगे, नीचे उतरेगा। और देखो ये बदमाश है, ये कहाँ चला आया? नेगेटिव। नेगेटिव। जो समझदार प्रोड्यूसर होता है इसको जीरो पर पहुंचने के पहले ही काम को चेंज करता है। काम को क्या करता है? चेंज करेगा। अगर छोड़ देगा तब क्या हो जाएगा? छोड़ देगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी खा जाएगा, पूरे फैक्ट्री को बर्बाद कर देगा। हाँ नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट? नहीं सर। वाह। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या की हो? अभी तक सर दूध पिए थे। किसका? गाय का दूध और किसका? नहीं, हम राजस्थान में गए थे तो ऊंट का दूध पिलाया था। नहीं हम गाय का पिए थे। दही दही हम उठ के दही नहीं। दही दही पूछे क्या आता है, खिलाया हमको, अजीब लग रहा है, कहेगा कि ऊंटनी के दूध का है।
जैसलमेर घूम रहे थे, वहीं पर हमको इसका ज्ञान मिला। उसका बाद आगे कहीं भी दूध का कोई चीज लेने का हिम्मत नहीं किया। तो अब वैसे हमारे यहाँ देखो, बकरी का दूध सुनते हैं कि कौन एक बीमारी होता है, उसमें लोग डेंगू, बहुत बड़ा बड़ा आदमी सब जो है कार से जाता है और झोपड़पट्टी में जाके कार रोकता है, वहां वो बकरी का दूध लाता है। तो महात्मा गांधी बराबर बकरी लेके लंदन चले गए थे। उसका वीसा नहीं दे रहा था कि बकरी को नहीं ले जाने देंगे। कहा नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। तो चूंकि लंदन जाना, तो वहीं से आया कि नहीं, जो चीज लेके आना चाहते आने दीजिए। तो बकरी लेके गए। अभी सच बात है कि झूठ हम जानते नहीं, जिसको चेक करोगे कि लेके गए थे कि नहीं। ठीक है उतरे सर, चेक करें। वो जब उतरे थे वहां लंदन में ना, जब जहाज से, जब पानी के जहाज से गए थे, हवाई जहाज उस समय रेयर था, तो हजारों हजार आदमी इनको रिसीव करने के लिए आया हुआ, देखने के लिए आया हुआ था। आई एकदम उघारे दे थे, आज ठंड चल रहा, लोग तरह तरह का ओवरकोट पहने हुए थे। तो ये सब चीज उनका जो है शो करता है कि सोल जो है थोड़ा अपर ग्रेड का था। अब देखो ये जो है, देखो हम जो तुमको बताए वो चीज तो समझ गई कि क्या हम बताना चाह रहे थे। अब इसी चीज को देखो यहाँ बोर्ड पर, अभी बनाओगे नहीं, देखो केवल। बना रही हो कि देख रही हो? देख रहे हो सर? हाँ। अब ये जो है 45 डिग्री का एक लाइन खींचोगे। उसके बाद जो है यहाँ से एक कर्व को निकालेंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, यहाँ टच करा देंगे। रीत गया, सर वो कट गया, फिर जो पढ़ा रहे थे कट गया। हाँ, नया आप वो लोग रिकॉर्डिंग चला गया। है नया रिकॉर्डिंग होगा। क्या? अब नया रिकॉर्डिंग होगा। हाँ, तो और पिछला बात जो हम लोग कर चुके हैं वो रह गया वहाँ। अब हम लोग अब इसको जो है, ये अब नया हो जाएगा। ये तुम्हारा बहुत फ्लक्चुएशन है। 45 डिग्री का लाइन बनाए, उसके बाद एक कर्व यहाँ टेंजेंट हो गया और यहाँ ऊपर जाके नीचे गिर गया।
अब ये नीचे वाला हो जाएगा वेरिएबल फैक्टर। एग्जाम्पल ग्रेसिया है, इजी लेबर लिख देते हैं ताकि दिमाग में रहे कि रोजगार होगा लेबर। और इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया टीपी। टीपी का मतलब हो गया टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। अब देखो ट्रिक क्या है इसमें कि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको टच करना है। मैक्सिमम पॉइंट टच करके यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको सीधे नीचे लाना है। और जहां यहाँ टेंजेंट हुआ है उसको नीचे लाना है। इसको एच नाम देंगे, इसको एम नाम देंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब जो है एक कर्व देखो, यहाँ यहाँ से एक दूसरा कर्व लेंगे जो थोड़ा नीचे इसे करके जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमाइज होके और फिर यहाँ से नीचे गिरेगा। ये एमपी होगा राइट? है? ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला कर्व होगा। हमारा क्वेश्चन था कि सुबह में क्या खाई हो, तो तुम पीने का क्वेश्चन तो खाने का पूछे थे। सर हम दूध ही पिए हैं हाँ, अगर और उसका नारियल खाए। अगर उसका छेना खाती तो वो खाने में कहलाता है। हाँ सर। तो देखो ये कहलाएगा एवरेज, एवरेज प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो यहाँ पर हम लिख दें टीपी हो गया, फिर एपी भी हो गया। अब क्या बच रहा है? एमपी। एमपी। अब देखो एमपी जो है पिंक कलर से दे रहे हैं, ये दोनों के बीच में रहेगा, इसलिए एपी को थोड़ा नीचे करके बनाना है ताकि बीच में जगह रहे। अब यहाँ हम लोग बीच से निकालते हैं इसको। अब ये अपना निकला बीचे बीच चल रहा है, देखो ये जा रहा है, ऊपर गया, एवरेज के ऊपर चला जाएगा। एवरेज के ऊपर चला गया, अभी मोड़े नहीं है, ऊपर चला गया। गौर से हाँ हाँ देखो, ऊपर चला गया हाँ। तब यहाँ पर उसको मोड़े। इसका जहाँ इसका जो मैक्सिमम है वहां पर डाले। अब इसको नीचे लाए, ऐसे नीचे लाए, इसी को एम में काट के नीचे ले गए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो माइनस दिखाए थे वो नजर आ रहा है, यहाँ माइनस हो गया। यहाँ प्लस में है, घट रहा है लेकिन प्लस में है। यहाँ ई भी ऑलवेज प्लस में है, ई भी ऑलवेज प्लस में है। यहाँ क्या हो रहा है? माइनस में है। माइनस। ये पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या नाम देना चाहती हो? ई। कोई लेटर बोलो। ई ई। ई। इसी का नाम हो गया मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट। टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट। यही एक तरह से समझो इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर। इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर फर्म
इक्विलिब्रियम हो गया प्रोड्यूसर का, इसके आगे जो है वो नहीं बनाएगा, उत्पादन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके आगे उसका उत्पादन घटने लगेगा। राइट। जहां बाएं दाएं हुई, राजगीर गई हो कि नहीं? क्या? राजगीर गई हो यहाँ बिहार में? हाँ गई। वो चढ़ी थी क्या? वो नीचे से ऊपर ले जाता है, हाँ 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 झूला ऐसा रहता है। हाँ हाँ। चढ़ी हो क्या? ऐसे ही करे नहीं चढ़ी है सर। रोप पे, रोप पे, यस। है ना? फोटो भी है। हाँ। तो रोप पे में चढ़ने पर तुम कितना ऊंचा नीचा जाएगा, तुम्हारा जो वो स्टेट रहेगा कुर्सी बैठने वाला। क्यों? क्योंकि ऊपर में वो लूज रहता है। अगर उसको टाइट कर देगा तो जैसे ऊपर जाएगा तो उसका पोजीशन बदल जाएगा। राइट। बहुत सारा आता है, बड़ा बड़ा झूला रहता है, बहुत बड़ा, उसमें सर वाई एक्सिस में टीपी एमपी भी तो लिखेगा ना, टीपी एमपी एपी। टीसी टीपी एमपी और एपी। किस में? वाई एक्सिस। हाँ, यहाँ टीसी एमपी एमपी। हाँ, एक्चुअली ये डिफरेंट तरह का आउटपुट है। आउटपुट है, चाहे टीपी में लो, चाहे एमपी में लो, चाहे एपी। ठीक है? हाँ। तुम एज ए ओनर ऑफ द फर्म क्या चाहोगे? कि प्रोडक्शन एच पर रोके कि एम पर रोके? प्रोडक्शन एचपीओ की। एम पर रोकोगी, एम पॉइंट पर रोकोगी कि एच पर रोकोगी? एम पे रोके, एम पे रोकेंगे। Because at H there is a possibility of increasing total production. करेक्ट। एंड Produ- एट एम पॉइंट वी आर गेटिंग मैक्सिमम टोटल आउटपुट। and producer is not interested in loss of return. He is interested in maximizing production. So he will start producing from starting point origin to directly to H. H पर आने पर he will feel that the another stage is coming. क्योंकि ये जो स्टेज है ये वाला है इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज। ये स्टेज क्या क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रिटर्न स्टेज। और ई वाला हो जाएगा कांस्टेंट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या बोले? स्केल नहीं बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और और कांस्टेंट बोलेंगे नहीं, दूसरा होगा डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग रिटर्न को भी वो पसंद करेगा, क्योंकि वही उसको मैक्सिमम पर ले जाएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है, और ये जो है तो सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में वो जाना नहीं चाहेगा। क्यों? नेगेटिव रिटर्न्स। निगेटिव रिटर्न। निगेटिव रिटर्न। निगेटिव रिटर्न। अब यहाँ एम पर क्या हो रहा है? एम पर क्या हो रहा है? एट पॉइंट एम इन डायग्राम, यहाँ लुक, यहाँ देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 0 है और टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है।
maximization of total outlay. Maximization of total outlay. Maximization of outlay. total outlay. है ना? हाँ, ये तुम्हारा हो गया स्टेज 2। तो क्वेश्चन रहेगा कि प्रोडक्शन किस स्टेज में डिसाइड होता है। प्रोडक्शन डिसीजन जो है, हाउ मच वी प्रोड्यूस, किस स्टेज में होता है? स्टेज 2 में। सुन रही हो? उठ के गई है क्या? और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कहाँ होता है? स्टेज 2 में, एम पॉइंट पर। एम्प्लॉयमेंट सर नेटवर्क इश्यूज का। एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन कहाँ होता है? एट पॉइंट एम, where marginal productivity of labor is 0 or total productivity of labor is maximum. तो इसके बाद वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। रैशनल प्रोड्यूसर जो होता है वो इसके आगे बढ़ेगा। तो ये निगेटिव रिटर्न हो गया। निगेटिव रिटर्न में क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्शन भी फॉल्स है, लेकिन निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव तो मार्जिनल हो गया। तो किसी भी हाल में प्रोड्यूसर विल नॉट क्रॉस एम। एम एम्प्लॉयमेंट से आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्वेश्चन तुमको रहेगा कि व्हाई मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इज इन स्टेज 2, व्हाई प्रोडक्शन डिसीजन टेक्स प्लेस ओनली इन स्टेज 2. Stage 2 is very, very important because it decides two things at a time. Total production is maximized and employment is maximized. Maximum employment opportunities may be given at point M, which is the end of the diminishing return, and maximum output will be produced by the firm at point E, that is end of the stage 2, and maximization of total production curve. Is it clear? यस सर। अब इसी बात को तुम बोलो। At point M, employment determination at point M, where the marginal productivity of labor is 0 and total productivity of labor is maximum. Where in the stage 2, there is maximum total output, and the producer will not producer do not want to go further because it will lead to a negative returns. क्लियर है? Yes. हम्म। Yes, sir.
चलो कि हम करते हैं। Law of variable proportion. Explained. Law of सर variable. एक्सप्लेनेशन होगा। हाँ, क्या बोली? एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन। Proportion explanation. Explanation with diagram. ठीक है, हाँ सर। थैंक यू। ये चित्र तो ऐसे एक्सप्लेन हो जाएगा, हैं? क्या कुछ लिखने का जरूरत है? हैं? स्टेज, स्टेज 2 यहाँ लिखे हैं। स्टेज स्टेज 2 और स्टेज 1 में क्या हुआ? स्टेज 1 में हो गया तुमको मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट, all are increasing, all are increasing, but average product is maximized, is maximized at point A, at point A in diagram। अच्छा, एक चीज गौर से देखो, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो गया बी पर, इसके ठीक ऊपर वाला जो बिंदु होगा इसको बोला जाता है सी पॉइंट। तो ए पॉइंट हो गया, at point AP is maximized at point A।
in diagram. MP is maximized. At B. In diagram. And C point is called, C point का नाम क्या होगा? Point of inflection. जहां पर मार्जिनल मैक्सिमम होता है. C point is called point of inflection. Point of inflection from where total product curve changes its curvature. Curvature from convex to concave. From convexity to concavity. From convex to concave. From convex to convex to concave. Increasing returns. Stage 1. Diminishing return. Stage 2. Negative return. Stage स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 हो गया निगेटिव रिटर्न. स्टेज 3 हो गया निगेटिव रिटर्न. where total production falls, marginal production negative, and average production falls.
No firm will enter no firm will enter in this stage एक्सप्लेनेशन का स्पेलिंग क्या होगा? आई यहाँ ए लिखे हुआ नहीं ना होगा है? है? या उड़ गया क्या? Law of variable proportion. Law of variable proportion explanation. It diagram. Law of variable proportion explanation with वो कंप्यूटर में पूरा पारंगत है, तो यही हमको प्रॉब्लम था तो वही सिखाते थे, तो हम ऊपर में देना शुरू कर दिए। भैया बोले कि ऊपर में टाइप कर दीजिए। पहले तो इरिटेट हुए हम, कौन सी टाइप करें, लेकिन देखते हैं कि